एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि मैं परमात्मा की अनुभूति करने के लिए क्या करूं? ओशो ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि तुम्हारी योग्यता ही क्या है, तुम कर ही क्या सकते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम कुछ कर सकते हो तो सिर्फ इतना कि अपनी प्यास बढ़ाओ और मेडिटेशन ध्यान को एक प्रायोरिटी दो। इतना कर लो पर्याप्त है तुम्हारे लिए। हम वो भी नहीं कर पाते, ना तो प्यास बढ़ा पाते हैं, ना किसी प्रायोरिटी रख पाते हैं। हम इस संसार में जाकर इतना खो जाते हैं, ध्यान कहाँ गया, सब कुछ कहाँ है, यहाँ क्या सुना, क्या किया, सब भूल जाते हैं और बस यहीं से हमारा अस्तित्व से जुड़ाव खत्म हो जाता है। अपनी कनेक्शन को बनाए रखो, ये जो जोड़ है इसको बनाए रखो, एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी शून्यता में जियो, जहां से बाहर जाते हो शून्यता का अनुभव करते हो, शून्यता की याद बनाए रखो। जितनी शून्यता की याद बनाए रखोगे बस उतना अच्छा। यहाँ वो प्रैक्टिस करनी है। जस्ट यू हैव टू, जस्ट व्हेन यू गो आउट फ्रॉम दिस मेडिटेशन हॉल, दिस टेम्पल, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट बी अवेयर, नो थॉट्स ऑफ एनी काइंड्स should come. Like you are an empty vessel, the space within you and around you. Just have a remembrance of this empty vessel. That's enough. You will sometime feel that you have lost everything because no thoughts, you are no having no habit of living like this. Because your mind is so smart, will put the thoughts related to the meditation and you will trap with that. Because it is not that the mind will only give you the worldly thoughts. Mind will start giving you the questions which are not related, past or future. Oh, you have this experience. Oh, you will have this related to the meditation, and you will be trapped into that. No thoughts means no thought. Even the no thought of the godliness, just emptiness. Don't let your mind trap you with any kind of thought. Because it is so smart. The mind is very smart, very, very smart. Knows how to capture you. In the different ways, it will come and capture you. Because beyond mind is the death of mind. And who wants death in this life? Neither body, neither mind, neither emotions. Nobody wants death in this life. Everybody wants to live. Mind also wants to live actively, like it is living. And now you are trying to go beyond mind. How the mind will allow you to go, leave it. Yes, mind is a very good friend. Once you sometimes be with the awareness, listen to the mind, then he will be satisfied. Just listen to the mind with full of awareness. Many times you are going to eat something, there are three choices. Listen to the mind. Mind, what mind wants to eat it? Chole bhatura? Okay, go. Nobody is fried. Listen to it. Behave like a friend. Sometimes mind wants to live at the level of body. Allow it. Sometimes at the emotions. Allow it. But become the owner. मालिक बनकर मन को लग करने दो, बेहोशी में नहीं। मन पूरी तरह से आपको मन के साथ जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन बेहोशी से नहीं, जागते हुए। मन दोस्त है, मन हमारी रक्षा के लिए है। अगर मन इतना वेस्ट होता तो परमात्मा हमारे शरीर के साथ मन क्यों लगाता? इसका पर्पस है। मन में विचार, सबकॉन्शियस में विचार इकट्ठे होते हैं, हमारे अनुभव इकट्ठे होते हैं, उस अनुभव से हम अपने मार्गदर्शन करते हैं। मन का बहुत उपयोग है जीवन में, इसलिए मन को कभी दुश्मन मत समझना, बेस्ट फ्रेंड है आपका। ओशो ने यहां तक कहा है, दिस बॉडी एंड दिस माइंड आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड ओनली एक्सीडेंट हैपेंस, दिस बॉडी एंड माइंड्स बिकम द ओनर and the consciousness becomes the slave. You only have to reverse it, that's it. Very easy. Just make your consciousness as an owner and body and mind as a friend. I don't want to use the word slave. Make it friends. Listen sometime. Listen to your body. Listen to your mind with awareness. Do any damn thing. Everything is good, but with awareness. That will have its own experience. And you will learn from it, and then you will decide that the next time you have to do this damn thing or not.
यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। मन को इतने साथ लेके चलो कि दोस्त हो की तरह लेके चलो। कुछ भी कहे उल्टा सीधा करने के लिए भी होश के साथ करके देख लो। अगर उसका अनुभव अच्छा नहीं होगा तो अगली बार अपने आप ही नहीं करोगे। और इस जीवन को कुछ गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये जीवन एक फन है। इतने जीवन आए हमारे पास, इतने जीवन चले गए। हाउ इट मैटर्स एक और है। हाँ यस, कोशिश करना जागते हुए जीवन जीना, जितना जाग सको। किसी भी चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ना पोजीशन, ना पैसा, ना जो हमें ये संग साथ मिला है। हम बहुत जल्दी बांध लेते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ बाप। एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बन गए जिसमें आपका कुछ योगदान ही नहीं है। सच पूछो तो क्या आपसे पूछकर बच्चों ने, परमात्मा ने लिस्ट भेजी थी किस तरह का बच्चा चाहिए? क्या आपने टिक मार्क किया था? अरे भाई, आपने एक फिजिकल एक्ट किया, उस फिजिकल एक्ट के परिणाम से परमात्मा ने अस्तित्व चलाना है, आपके द्वारा कुछ पैदा हो गया, आप तो मान के ही चलने लगे कि यही सब कुछ है मेरा। और जब आप मर जाओगे आग भी वही लगाएगा। इसलिए किसी भी चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद लोग समझते हैं शरीर को फटाफट बाहर निकालो। जितनी जल्दी, एक रात रखने में शरीर को कितनी तकलीफ है देखो। ये सच्चाई है आप लोगों की। और हम उन रिश्तों में, बंधनों में इस तरह से उलझे हुए हैं। मैं नहीं कहता प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो, जितना बेस्ट कर सकते हो करो। जो जितने आपके बायोलॉजिकल आए हैं, जिम्मेदारी आपकी कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक डेस्टिनी है। हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी से जी रहा है। आपने अपने माँ बाप को कितना सुना? और आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको सुने? आपने कितनी चीजें की, कुछ नहीं समझी, अपने अनुभव से सीखी और अपने अनुभव से जी। क्या आपके माँ बाप ने आप सबको ध्यान के लिए आने के लिए आराम से परमिशन दे दी थी? ज्यादा से ज्यादा 20% लोगों को। 80% तो लड़ झगड़ के लिए आए। मैं खुद भी लड़ झगड़ के आया था। किसी की किसी ने नहीं सुनी आज तक, और किसी की कभी कोई सुनेगा भी नहीं, ये भी याद रखना। उसी की सब कुछ सुनते हैं जो अपना मन चाहता है सुनने के लिए। अपने आप को भ्रमों से दूर करो। सबसे पहले अगर कुछ नए आदमी आप यहाँ पर आए हो, अपने आप को नग्न देखने की सबसे पहले धैर्य पैदा करना। मैं भीतर से क्या हूं? अच्छा बुरा कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। अब क्या हो बस वैसा जान लेना, वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। Just have a dare capacity to watch yourself naked. That is the excellent thing I can say that in the meditation. Because journey will start where you stand. Don't define nothing good, nothing bad, nothing right, nothing wrong. Just enjoy. Enjoy the living. Moment to moment. With full awareness, with full love, with full consciousness.